and on we'll go. Previous lecture we are already completed our few topics, that is called staffing, the process of staffing, the importance of staffing, recruitment, internal, external, merits of internal recruitment and demerits of internal recruitment, merits of external recruitment, demerits of external recruitment, right? And all the types of external recruitment and internal recruitment we are learning in the previous lectures. So today we are going to start with the new thing that is called the second topic. Now we call it as selection. It is selection. If we are talking about the formula, the process of staffing, here in the process of staffing we have estimating the manpower requirement, our first step. Second we have recruitment, and third we have selection. So here today we are going to start with the third step of staffing process called what? Selection. What is that? It is selection. So first of all we are going to learn what do you mean by selection. What is selection? Selection means selection. It is a process of choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. Means in recruitment you are seeing that we are learning a definition. What is that? It is searching out the prospective candidates and inspiring them, stimulating them to apply in our organization is known as recruitment. So in selection, those persons who are coming to apply in our organization, now they are selected. So via this method, via this process only we are selecting an employee. Via this method only we are selecting the employee. That is only the reason we say that selection is a negative step and recruitment is a positive step. Why it is so? In the recruitment we are inspiring workers, candidates to apply in our organization because they are coming in the organization, we are inviting them. That is why we say that it is a positive step. But in selection we are rejecting. In selection we are rejecting the employees, and due to rejection, because we have 1,000 employees were applied in our organization, out of that we are choosing 100 suppose, or 10 or 20. So it means if we are selecting 100 from 1,000, means 900 candidates should be rejected. That is the reason selection is called the negative step. Selection क्या बोलते हैं? Negative step कहते हैं. I hope it is clear. Now we are going to learn the selection process or the selection step. हाँ, आज हम अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं. हाँ, आज हम फाइनली सिलेक्ट कर ही लेंगे किसको रखना है और किसको नहीं, है ना? तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन process. What we say that it is called selection process. So let us talk about what are those. So here we have first preliminary screening. What is that? It is called preliminary screening. Second is selection test. Second is selection test. Third is employment interview. Third is employment interview. Fourth, reference and background check. Fourth, reference and background check. Fifth, selection decision. Fifth, we have selection decision. Sixth, medical examination. Sixth, we have medical examination. And the as job offer. And the last and the eighth is contract of employment. What is that? Contract of employment. But out of them, selection tests again are of 5 types. Intelligence test, aptitude test, personality test, trait test and interest test. Right? So let us learn
वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। अभी हम लोग हर एक एक स्टेप को समझेंगे बहुत ध्यान से, राइट। दिस इज नॉट द टाइम टू जस्ट वी कॉल इट है ना, उसको माइंड में याद कर लो, याद करना नहीं, इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। प्लीज़ बड़े अटेंटिवली इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए, आवर फर्स्ट स्टेप इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग? मीन्स प्राइमरी स्क्रीनिंग। व्हाट इज दैट प्राइमरी स्क्रीनिंग? देखो, अभी क्या हुआ, मैंने रिक्रूटमेंट किया, तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे मैंने एडवर्टीजमेंट दे दिया न्यूज़पेपर में, इवन दैट आई एम गिविंग इट ऑन टेलीविजन ऑल्सो, एंड वेब पब्लिशिंग पे भी कर दिया। आफ्टर दैट सीइंग द 1000 पीपल्स आर सीइंग इट एंड कमिंग to apply in our organization. At a time when on the day the interview is held, we have 2000 employees. कितने लोग आ गए? 2000 लोग अप्लाई करने के लिए आ गए। अब 2000 पीपल्स का इंटरव्यू लेना पॉसिबल है? नो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कब तक करेंगे इंटरव्यू इन लोगों का? कितने सारे प्रोसेस को कैसे फॉलो करेंगे? सो वी आर डूइंग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। व्हाट इज दैट? सपोज हमारी जो जॉब है उसमें हमें राइटिंग पोर्शन ज़्यादा कराना है ना, लिखवाना ज़्यादा है लोगों से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबसे पहले आया, जिस रूम में वो 2000 पीपल्स कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, उस रूम में पहुंचा, उन अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड स्टार्ट गेटिंग द टेस्ट। मैंने सबसे पहले टेस्ट लिया, दोज हु नोज you all have to write an application। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, टू दैट मैंने एक कंटेंट दे दिया इस पर। तो इट इज व्हाट, यहाँ पर क्या हुआ, सम आर सेइंग सर वी डोंट नो हाउ टू राइट एप्लीकेशन, दे एलिमिनेट सेम टाइम, राइट। एंड और मैंने क्या बोला, मुझे इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हाइट चाहिए 5 फीट 7 इंच, राइट। 5 फुट 7 इंच वाले लोग आएंगे। अब जो इससे कम वाले हैं सब निकल लो। तो इससे क्या होगा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब बेसिक पार्ट्स, जो बेसिक चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें मैनेजमेंट के लिए एक जॉब थी हमारे यहाँ, मैनेजमेंट के लिए मैनेजर बनाना था हमको। तो वी रिक्वायर्ड MBA एज वेल एज BBA ऑल्सो। हमने BBA MBA दोनों दे दिए। अब इतने सारे लोग आ गए तो हमने बोला दोज हु आर नॉट MBA दे कैन गो। जो MBA नहीं है वो जा सकते हैं। तो BBA वाले सारे चले गए। अब कितने बचे? Now, how many we left? Only 500 employees were left. अब जो 500 बचे या जितने 100 बचे, अब उनका होगा नेक्स्ट प्रोसेस, अब उनका होगा नेक्स्ट वे। तो अभी हमने जब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दिया तो हमारा सेकेंड स्टेप राइज होगा। एंड व्हाट इज दैट सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट। डिफिकल्ट वन है ना। सेकेंड स्टेप क्या है? सिलेक्शन टेस्ट। और सिलेक्शन टेस्ट के अपने आप में 5 और स्टेप्स हैं, है ना, 5। व्हाट आर दोज? वो क्या है? तो हमें इनको भी पढ़ना पड़ेगा पहले। सिलेक्शन टेस्ट मतलब अब फाइनली हमें सिलेक्ट करना है ना, तो कुछ हर्डल्स क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट करने हैं? हर्डल्स क्रिएट करने हैं एम्प्लॉइज के अमंग, सो दैट कि वी कैन फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ सो मेनी। सो फर्स्ट वी हैव इंटेलिजेंस टेस्ट। व्हाट इज दैट? इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट इज जनरली कॉल्ड IQ टेस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? IQ टेस्ट बोलते हैं। मतलब IQ टेस्ट मीन्स हाउ यू रिएक्ट, है ना, मीन्स व्हाट द मेन आप अपना दिमाग कैसे चलाओगे। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दे दी, इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलोगे, आप उसका रिप्लाई कैसे दोगे। इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। हाउ इंटेलिजेंट यू आर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या कहलाता है बेटा? ये इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स टू चेक द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय। मीन्स मैंने सपोज कि कोई पर्टिकुलर टास्क था, मैंने आपके सामने करके दिखाया एंड लाइक दिस फॉर एग्जांपल वी हैव असेंबलिंग ऑफ व्हाट, कोई मशीन है जिसको मेरे पास खुली पड़ी थी, मैंने उसको आपके सामने कहा कि जरा ध्यान से देखना। मैंने उसको पूरा असेंबल किया आपके सामने एंड गिव इट टू यू, अगेन आपको दिया, मैंने कहा इसको ओपन कर दो, राइट। तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न
कि आपकी आपका एप्टीट्यूड चेक करना है, आपकी पोटेंशियलिटी चेक करनी है कि नई स्किल्स को आप कितने जल्दी से सीखते हो, राइट? इट इज कॉल्ड पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स। आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो, कितने ज़्यादा पोटेंशियल हो अपनी नई स्किल्स को लर्न करने के लिए, उसके लिए हम करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, देन वी हैव पर्सनालिटी टेस्ट। व्हाट इज दैट पर्सनालिटी टेस्ट? वी कॉल इट एज ह्यूमन बिहेवियर, राइट? हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, how you entering in the interview room, or the things that how you are standing, how you reacting, how you doing anything. So this is called personality test. This is called your behavior. आपका behavior क्या है, ठीक है ना? For example, that we are seeing that we made many videos, we are seeing कि इंटरव्यू के लिए लोग बैठे हुए थे, वहाँ से एक जो मालिक है, खुद ही जो ओनर है, वो खुद ही कार्टन लेता हुआ आया, अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए थे, सर्वेंट के ड्रेस में आया और उसने लोगों से हेल्प मांगी, है ना? कुछ लोगों ने हेल्प की, किसी ने नहीं की, किसी ने मजाक उड़ा दिया, अब मैं इतनी अच्छी जॉब के लिए आया हूँ, मैं कार्टून पकड़ूंगा, गंदे नहीं हो जाएंगे मेरे कपड़े। ये सब क्या है? दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। ये क्या चेक हो रहा है? आपका पर्सनैलिटी चेक हो रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एक्चुअली, आप किस टाइप के पर्सन हो, है ना? दिस इज कॉल्ड personality test, your human behavior. Next we have trait test. Trait test means how you what the existing knowledge you have inbuilt you, means कौन सी existing knowledge आपके पास है जिससे कि आप इसको कब किसी भी वर्क को कर पाओगे, है ना? It is called trait test. मतलब हम इसमें क्या करके दिखाते हैं? आप जैसे सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मुझे आपसे सेलिंग करानी है। क्या करानी है? सेलिंग। तो मैंने आपको जनरली आपने देखा होगा एक वीडियोस ऐसी बहुत सारी आई कि ये पेन है, इस पेन को बेच के दिखाओ मेरे को, इस पेन को मेरे को ही बेच के दिखाओ। तो क्या है? ट्रेट टेस्ट, राइट? व्हाट द पोटेंशियलिटी यू हैव इनबिल्ट इन यू टू चेक व्हाट कॉल्ड ट्रेट टेस्ट, राइट? ओके, नाउ आफ्टर ट्रेट टेस्ट we have the next one called interest test. What is that interest test? Interest test means आपका जो इंटरेस्ट है वो किस जॉब में है। बेसिकली यू आर कमिंग फॉर टू बिकम अ मैनेजर, लेकिन कौन सा मैनेजर बनना है? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, राइट? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट योर इंटरेस्ट। हम यहाँ पे क्या करते हैं? आपके इंटरेस्ट की बात करते हैं। वी कॉल इट एज इंटरेस्ट टेस्ट। आई होप ये सिलेक्शन टेस्ट क्लियर है सबको। आफ्टर लर्निंग सिलेक्शन टेस्ट वी आर ऑन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। मीन्स इफ a candidate is passing this step, then the candidate coming in selection test, second step. After all the hurdles, if he passed, then they appear for the third step called employment interview. किसके लिए अप्लाई होगा, किसके लिए अपियर होगा? थर्ड स्टेप के लिए अपियर होगा, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू मीन्स पर्सनल इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। किसका? मैनेजर का, और मतलब उसको हायर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ क्या होगा? फेस टू फेस एक मीटिंग होगी, उससे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कहते हैं, राइट? क्लियर है? आफ्टर दैट इफ अ पर्सन इज पासिंग दिस स्टेप ऑल्सो, then going for the reference and background check. Means whatever the employee we are arranging, तो we have to check it कि वो एम्प्लॉई अच्छा है या नहीं, उसकी नेशनलिटी इंडियन है या नहीं, वो किसी पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन से भाग के तो नहीं आया था, वहाँ पे कोई क्राइम तो नहीं किया था, ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है। ये सारी की सारी बातों को जानना क्या कहलाता है? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कहलाता है। इफ अ कैंडिडेट पासिंग अबव ऑल 3 steps, then the candidate appear for reference and background check, and in this step the employee's background is check कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक अच्छा है, उसके सारी बातें जानना, उसका कैरेक्टर जानना। What is that? Character. It is known as reference and background check. After that, if a person is passing this step also, going for the selection decision. अब फाइनली हम सिलेक्शन डिसीजन लेंगे।
इसको रखना है या नहीं। तो इतने सारों में से बहुत सारे लोग पास करके आए। अब उनमें से हमें कुछ सिलेक्ट करने हैं। जैसे हमने 20 सिलेक्ट कर लिए, तो सिलेक्शन डिसीजन में कितने आ गए, हमने फाइंड कर लिया कि ये फाइनल है 20 कैंडिडेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन मतलब अब हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि किस किस को हमें रखना है। तो हमने कितने को डिसाइड कर लिया, 20 डिसाइड कर लिए। उसमें से भी हम एलिमिनेट करेंगे अभी, लेकिन हम 20 कर लिए डिसाइड, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद हमने कहा ये 20 के संग चलो आगे। अब इन 20 के संग हम और आगे बढ़ेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स अगर हमारा फैक्ट्री में कोई ऐसा काम होता है जो वाटर का है, पानी का है, तो उसको चेक कर जाएगा उसको वाटर फोबिया तो नहीं है। हो सकता है हमारी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा हाइट पे काम होता हो, तो उसको हाइट का फोबिया तो नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। हो सकता है फायर पे काम होता हो, या बहुत ज़्यादा साउंड आती हो, या वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता हो, तो हमारा मेडिकल टेस्ट होता है, इज दिस एम्प्लॉय इज एबल टू बियर दैट थिंग्स, उसे किसी चीज़ का फोबिया तो नहीं है। ये सबको चेक करना क्या कहलाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कहलाता है। अगर उस कैंडिडेट ने मेडिकल एग्जामिनेशन को भी पास आउट कर लिया है, तब उसको फाइनल क्या होगा, जॉब ऑफर किया जाएगा। व्हाट इज दैट जॉब ऑफर, वी फाइनली एक्सेप्ट दैट पर्सन, और हम उसको क्या करेंगे, जॉब को ऑफर देंगे कि भाई हमारे यहाँ पर ये पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई अपॉइंट हुए हो, दैट इज कि हम आपको ये काम कराएंगे। ये सारी बातें आपने किसके अंदर डिसाइड कर ली, जॉब ऑफर में। आपने फाइनली इसको सिलेक्ट कर लिया और आपको बोला कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टिंग फॉर आवर जॉब। आप सिलेक्ट हुए हो हमारी कंपनी के लिए। नाउ यू हैव टू वर्क फॉर आवर कंपनी, नाउ यू आर बिकमिंग द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। दिस इज कॉल्ड जॉब ऑफर। इसे हम क्या बोलेंगे, जॉब ऑफर कहेंगे। और व्हेन यू आर गिविंग जॉब ऑफर, तो यू हैव टू पास आउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग आवर्स, पे, कितना पेमेंट करेंगे आप, सैलरी क्या होगी उस बंदे की, उसका स्टेटस क्या होगा, कितने घंटे काम करना है, ऑर्डर्स कौन लेगा, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगे, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो सारे के सारे रूल्स हैं। लेट आएंगे तो इतने रुपए कटेंगे, एक दिन की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी महीने में, ये सब कुछ CL जैसे हम बोलते हैं, या फिर कुछ बोनसेस भी मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, दिवाली पे बोनस मिलता है या नहीं, ये सारी की सारी बातें किसके अंदर में आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। So these are the 8 steps of selection process. If a person is passing all the above, then finally he gets job offer, and after in contract of employment, this is the last step in which the candidate create yes or no. इन एग्रीमेंट के हिसाब से हम आपको इतनी सैलरी देंगे, हम आपको ये करेंगे, तो उसके हिसाब से अगर कैंडिडेट हाँ है तो यस एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो इसको रिजेक्ट करके जा भी सकता है, राइट। दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। आई होप द सिलेक्शन टेस्ट इज क्लियर टू यू ऑल।